Respected Principal Professor Preeta Nilesh Ma'am, Vice Principal Dr. Neeta Mehta Ma'am, Head of SFC Commerce Dr. Seema Pawar Ma'am, in charge of BMS Department Dr. Aarti Shah Ma'am, and our esteemed resource person and proud alumnus of BG Valley College, Mr. Shubhankar Dekne, respected faculty members and my dear students, a very warm and cheerful welcome to one and all. There are certain decisions that may seem small when we are in college, but can have a lasting impact on person we become and the career we build. Where do I want to go? What should I do before I graduate? Should I focus only on academics or should I explore beyond the classroom? How important are networking, financial planning, experiences, and the choices we make along the way? These are the questions that most students begin thinking about as they move closer to graduation. Today, we are gathered for a session that is not just another lecture, it is a conversation about the choices, opportunities, mistakes, and experiences that shape life beyond college. On behalf of the Department of Management Studies, in collaboration with Alumni Association under the initiative Legacy Lives On, I extend a heartfelt welcome to all of you today's guest session on Beyond the Classroom, the decisions that matter before you graduate. What makes today's session particularly special is that our speaker is not someone who is looking at college life from a distance. He is someone who was sitting where you are sitting not too long ago. He is a Vazai alumnus who has experienced the transition from being a student to becoming a young professional and entrepreneur. His journey gives us an opportunity to understand what happens after the classroom and more importantly, what decision we can make before we leave it. It is my privilege to introduce our esteemed speaker, Mr. Shubhankar Dekne, a proud alumnus of AET BG Vazai College and a 2023 graduate. During his time at Vazai, Shubhankar graduated with an impressive 9.89 CGPA, served as the Chief Coordinator of Dimension 2023 and was honored with the Special Appreciation Award. For his contribution to the institution, he was also awarded the prestigious Mr. Vazai title. He went on to pursue his MBA from XLRI, where he graduated as a gold medalist and ranker. Today, he leads Mangalmurthy Investment, a third-generation wealth management firm established in 1982, where he is driving a firm growth, modernization, and expansion. Beyond academics and professional achievements, Shubhankar has also been actively involved in leadership, travel, and adventure, making his journey a wonderful example of learning both inside and beyond the classroom. What makes today's session even more special is it the one of the own alumni, someone who was sitting in this classroom not too long ago. Today, he is there to share decisions, opportunities, mistakes, experiences, and shaped his journey after college. We are delighted to have you. We are delighted to have you with us, sir, today. Sir, the stage is all yours. माइक के बिना भी आवाज आ रहा है, राइट? माइक के साथ बहुत ही लाउड है। एलुमनस बोल दिया, हम तो एलुमनाई बोलते थे। इतना करेक्ट इंग्लिश। So what is written is the most important part की एक conversation है, esteemed वगैरह कुछ भी नहीं हूँ मैं, और सर तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। So I am just one amongst you, and this is a conversation. बीच में कभी भी आपको लगे, please feel free to ask questions. अगर कुछ फोटो वीडियो लेना है, बिंदास नोट बनाना है, please feel free to do that. So you have to bear with this. Why me? What's so special about me that I'm standing here? Honestly, literally nothing. It's just that I am 5 years आगे आपसे, and I was in the same exact benches, same exact seats that you are in. I was having the same confusions, the same questions that you probably may have, and I have somewhat solved them. And 3-4 साल आगे हूँ तो थोड़े ज़्यादा चीज़ें से मैं गुजरा हूँ, so you can probably think that I can help you with those specific questions. See, I'm sure you would be having a lot of these talks. बहुत बड़े-बड़े लोग आके बोलते होंगे, even professors. Everyone talks about 10 years बाद में क्या कर सकते हैं, 20 years बाद में क्या कर सकते हैं. बड़ी-बड़ी बातें करते हैं. मैं छोटी बातें ही करूँ.
काम की बातें करनी है। अगले 2 साल में क्या करना है, अगले 3 साल में क्या करना है, कॉलेज से बाहर निकलूंगा तो क्या करना है, दैट इज वेयर आई कैन हेल्प। मैंने कुछ 20 साल जिंदगी की बीता ही नहीं है और मैं आपको कहाँ बताऊँ इतने आगे की बात। सो वेयर आई कैन हेल्प यू इज़ वेरी स्पेसिफिक। सो उसके बारे में व्हाट आई हैव लर्न थ्रू माई जर्नी आई एम गोइंग टू शेयर विद यू। अगर एक भी चीज़ आपको फायदे की लगी दैट वुड बी अ बिग विन फॉर मी। So hi guys, my name is Shubhankar. Dekhne they gave a wonderful introduction. I don't think anything is missed, but still, I am currently leading a team of 10. The people who are double my age, they are in the business. हमारे business में ever more than how old I am. And वो लोगों का मैं sorry to say but boss हूँ. So that is what I am currently doing. I am leading a firm which is called Mangalmurthy Investments. It was started by my grandfather. And we have a team of 10 people managing 280 crores AUM. परसों ही एक client मैंने onboard किया है. That one client was 7 crores. So I am managing well जितनी मेरे पास खुद है नहीं. So that is what I am currently doing. उसके पहले I was at XLRI where I graduated with a gold medal and my CGPA was 7.94 out of 8, which was the college के campus का highest ever. So that उसके पहले आई वॉज यहाँ पे कहकर कॉलेज डायमेंशंस कितने को पता है, how many of you are in dimensions? Okay, so I was the chief coordinator in 2023. In fact, chief coordinator ये शब्द मैंने झगड़ के लिया था because I think chief just adds it a little more weight. And one coordinator was also first time in the history elected in my year. अभी मैं मैम को बता रहा था कि जो नीचे का जो स्टॉल्स हम लगा रहे हैं दैट वाज आल्सो आइडिएटेड इन आवर ईयर एंड तभी बहुत मतलब कॉलेज मैनेजमेंट से बोल के उसको कन्विंस किया था एंड दे वर रेजिस्टेंट अबाउट इट कि सिर्फ डायमेंशंस के दिन पे स्टॉल लगा सकते हैं। बहुत कन्विंस करके वो लगाया एंड उसके बाद से इतने स्टॉल्स लग रहे हैं कि क्या बताएं। सीपी डिपार्टमेंट कोई है सीपी से, कल्चरल प्रमोशंस, सीपी और सुवीनियर, एनीवन? सो ये 2 डिपार्टमेंट्स कोविड के बाद बंद कर दिए थे। So after a lot of clash and बहुत झगड़ने के बाद I started those because I think there is some value there. So just some fun stuff, fun facts. I was awarded the Special Appreciation Award. Commissioner was a thing. I was the admin at we had said it that year. So yeah, उसके बाद उसके पहले I was at Sumaya, KJ Sumaya for my junior college and there I was the cultural leader. जो CL बोलते हैं ना, contingent leader. I was that, leading a team of 500-ish. Apart from that, I am also a part-time Treks and Tour leader, and wherein I lead trips, backpacking trips with Trekkers United from past 3.5 years. That is what I do side by side, अपना एक passion project, something for myself, something as a hobby. तो उसमें क्या I get to learn a lot because I meet new people, I make connections, free में घूमने को मिलता है, and थोड़ा बहुत पैसा भी मिलता है. So what better, right? So that is something about myself. A show of hands, please. How many of you want to be successful in life? Come on. किसी ने नहीं उठाया. And how many of you have planned for it? Exactly the crux of my topic. Exactly the crux of my topic. We all want to be successful, right? Even I want to be. But have we planned for it? Let's do some quick maths. I also hate maths, but let's do it. I am 23 currently, and I want to be successful by the age of 40. Can anyone volunteer? You want to? कर दो, चलता है. What is your age? 19. You want to be successful? By what age? 25. Okay. Okay. 30. 30 minus 19. Sorry. 11 years. Yes, got 11 years to be successful. And sir, in this 11 years, what do you think? Everyone can answer. In whatever years you have, till you think you should be successful, when is the right time to start planning for that success? Sorry? As soon as possible.
Anyone else? 5 years later, 3 years later, when you have done your masters, when you have completed your education, any answers like this? Or probably today? I would say yesterday. You're already late. You're all very late. I am also late. I think every day is a ticking clock against me and me being successful. And I think if that hits you, then you will be successful by sure, like for sure. If that is not hitting you, if that does not feel that nahi yaar, time hai, so I'm afraid to say that I think you will have to change your thoughts a little. Because guys, what is the biggest advantage like we have right now? What is the advantage that you have or that I have over a 30-year-old? If we are comparing ourselves with a 30-year-old, what is the biggest advantage that we have? Please, any answers? Time. More time. Sorry? Energy level, okay. What else? Lack of responsibility, amazing. You saying something? Technologically more advanced. Yes, obviously, yes. What else? This taking capabilities, amazing. As someone, as all of you, शुरुआत से ही आपने बोला the biggest advantage that we have is time. And what do people do with their advantage? अगर बुमराह फास्ट बॉलिंग डालता है तो क्या वो स्पिन डालेगा? They exploit their advantages, right? They absolutely exploit it. Are you exploiting your advantage? Are you having the biggest, the best possible utilization of your time? That is what I want you to question yourself. Because that is what I question myself every day at the end of the day. And almost every day I have a little regret. I don't think I did the best with my time today. And if I am able to do that 0.1% better every day, I think I will become that successful image that I have. So all I'm trying to say is we have the biggest advantage right now. See, इसके बाद you will probably get married, probably have kids, probably get into a job, and then you will not have the time to sit and plan कि मुझे क्या करना है. This brings me, this point. सबको successful बनना है, he also said, everyone said that. But do we have a plan for that success? And do you think after college you will have any time to do that? I personally made that mistake. I will come to that later on. But I don't think so. Right now you can write your thoughts. You can experiment. That luxury you will not have ever in your life after leaving college. Probably what you guys are SY, TY? TY? Probably. I think so both. So you guys have around 1 year or less or a year for you to make that plan. Because after that you would just be implementing it. And the thing with just implementing or as I've written, going with the flow, it all sounds very good. But for me, what I feel is if I'm going with the flow, I'm letting my life control me. Okay? I will not be taking, so life will be taking me where it wants. You will not be taking life where you want. Is that difference? Because I've just let things go with flow. जो होगा जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से निकलूंगा, कोई अगर बोल दे मतलब मेरा भाई बोलेगा BMS कर MBA कर ले तो कर लूँगा, इसके बाद जॉब करना होगा कर लूँगा, ऐसे करते करते आप go with the flow जा रहे हो, you will land up somewhere, but you would not have the control over life that you probably wish to have if you want to be successful. So that brings this conversation to a point where I talk about my first mistake when I was in college was going with the flow. Dimensions वगैरह ये सब में इतना टाइम ले दिया मेरा कि at the end of 3 years I did not know कि मुझे क्या करना है. बहुत अच्छा किया कैरियर में चीज़ें मिली, doesn't matter after college, doesn't matter. So I did not have a plan and that is when I started thinking. जो मैं आपको करने बोल रहा हूँ वो मैंने कॉलेज जाने के बाद I just wish someone would have told me एक दिन कि भाई अभी टाइम है, प्लान कर ले तेरे को कॉलेज के बाद क्या करना है. No one did and I just went with the flow and then I was graduated from college and then क्या आप imagine कर रहे हो, लोग आपको पूछ रहे हैं क्या करने वाला है भाई, कॉलेज के बाद क्या करने वाला है, मम्मी पापा पूछेंगे, रिलेटिव्स पूछेंगे and then you would be under a pressure to make that decision. Is that a good place to be or right now when you don't have that pressure of making the right decision? So
So the biggest advantage we have right now is what I could have done is back calculate. When I asked you, do you want to be successful? I'm sure everyone had an image of being successful. Everyone has a different image of that, right? तो वो image, that self, that future self को आपको पहुंचना है, उसके लिए back calculate करो. उसके लिए आपको कौन से qualifications चाहिए? उसके लिए where do you have to work first? What experiences do you have to gain? Write it down. It doesn't hurt, right? क्या होगा? You will just need your time to write it down, and that we have abundance of. तो आज क्यों नहीं लिख रहे हो? ये लेक्चर के बाद ASAP क्यों नहीं लिख रहे हो? Because any day wasted, as we said, when should we plan? Yesterday, right? So we are already late. So I personally think that you guys should make that plan ASAP. If someone would have told this to me, I probably would be introducing myself as a gold medalist of IIM, not XLR. Somebody would have told me this because मैं कॉलेज से ग्रेजुएट हुआ, देन मैंने सोचा क्या करना चाहिए, फिर मैंने कैट का प्रिपरेशन स्टार्ट किया एंड इसी में 4 महीने चले गए. अगर वो 4 महीने में कैट का प्रिपरेशन करता तो प्रॉब्लली मैं IIM में बैठा होता एंड यहाँ पे गोल्ड मेडलिस्ट IIM बोल. दिस इज अ बिग रिग्रेट आई हैव फॉर माय लाइफ. प्लीज बैक कैलकुलेट आपको कहाँ पहुँचना है, वो सक्सेसफुल से इमेज का है, उसके लिए आपको क्या एजुकेशन लेना होगा, क्या क्वालिफिकेशंस लेना होगा. यू हैव द बिगेस्ट लग्जरी ऑफ एक्सपेरिमेंटिंग राइट नाउ. क्या होगा, एक इंटर्नशिप करके, फॉर एग्जाम्पल मुझे हमेशा था कि डिकैथलॉन में एक इंटर्नशिप करना है. इट इज सो इजी टू गेट, वेरी इजी टू गेट. करके देखना है कैसा है, सेल्स में मैं कैसा हूँ. आई नेवर डिड दैट, प्रॉब्लली बिकॉज कॉलेज में थोड़ा ज़्यादा बिजी हो गया. सो एक्सपेरिमेंट, बिकॉज व्हाट इज द डाउन साइड, जस्ट टाइम जाएगा आपका, पैसे नहीं मिलेंगे, डजंट मैटर है, पैसे मम्मी पापा वैसे भी दे ही देंगे, तो टाइम जाएगा सिर्फ, उसी का तो अपने पास एविडेंस है. सो प्लीज एक्सपेरिमेंट, जो भी करने की इच्छा हो रही है फॉर दैट फ्यूचर सेल्फ, टेस्ट इट आउट. बिकॉज आफ्टर ग्रेजुएटिंग प्रेशर में आप डिसीजन बनाओगे एंड 10 साल बाद समझेगा दिस इज नॉट आई वांटेड टू बी, बट देन इट वुड बी टू लेट, देन मिड लाइफ क्राइसिस है. सो फिर अभी यू कैन डेलिबरेटली प्लान, यू कैन राइट थिंग्स डाउन, यू कैन डू एक्सपेरिमेंटेशन, थोड़ा काम करके देखो, टॉक टू पीपल. दैट इज द बिगेस्ट टिप दैट आई वुड गिव यू, कि जो भी इंडस्ट्री में जाना है उनसे बात करो. एवरीवन लव्स टेकिंग एडवाइस. अगर आप किसी से भी जाके पूछोगे मैम मुझे आपका एडवाइस लेना है, कोई ना बोलेगा, कोई भी नहीं, सबको अच्छा लगता है ये बात सुन. Just go and approach people, that's all you have to do. Just talk to people, test your theories. Is the successful image reachable? So अभी वो टाइम है, I think you could do this and write it down. Please write it down, it really helps. I have sheets of paper where I am doing positives and negatives of everything. आज तक मैं वो उसको रीड करते, I don't think I've made any decision that I regret इतना बड़ा कि कॉलेज ये लेना ही नहीं चाहिए था, because I wrote everything down and I knew my thought process. It doesn't take a lot, but very rarely do people do it. You know who this guy is? Any guesses? Mark Zuckerberg? Yes. You know what company founded, right? Facebook, Meta. And who are these guys? Any guesses? Random guess. Guess करो, किसी को भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, मतलब वो ऐसे दिखते ही नहीं पता. This is Larry Page and Sergey Brin. You know who those are? Yes, Google founders. Third photo. You know who this guy is? ये तो मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था, तो मैंने भी लिख के रखा है ताकि मैं भी कुछ ना भूल जाऊँ. Michael Dell, founder of Dell. Can you see a link in between these three? What do they have in common? Any guess? Dropout? Okay, close, but not all of them are dropouts. But yes, they started in college. And this is a mistake that I did personally. Somebody from you can reciprocate with that. Somebody won't. That I regret not having a side hustle. I regret getting into the rat race because I was behind the curve. कॉलेज जाने के बाद मुझे उतना टाइम नहीं लगा, इतना कॉन्फिडेंस भी नहीं था कि भाई मैं आप बोलूँ कि मुझे कुछ तो अभी स्टार्ट करना है. बिकॉज कॉलेज के बाद एवरीवन इज प्रेशराइजिंग यू, कब कमाएगा, क्या करने वाला है करियर में. नो वन हैज द करेज टू एट दैट पॉइंट से कि मैं दो साल अपने साइड हसल, अपने बिजनेस, अपने स्टार्टअप आइडिया को देने वाला हूँ. सो आई शुड हैव डन इट व्हेन आई वाज इन कॉलेज बिकॉज यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम एट योर हैंड. सो probably this is not for everyone, but for those of you who want to do something, or I'm sure some of you might be doing some businesses of your own, it is the best time to do it. If you think, because अगर ये आप कर पाए ना तो करियर का सवाल ही नहीं रहेगा.
You wouldn't have to go through that misery of making a career choice that and getting into the rat race of things if you have something of your own while you graduate. That's amazing, and people have done it, and they are the biggest people on the planet, like most successful ones. You know who is Brian Chesky? You heard about Airbnb? So Brian Chesky's करके देखते हैं experiment. You know the story of it? Anyone? So there was some World Cup event or something wherein all hotels were booked. He wanted a room. What he did was, he कोई तो आदमी के घर पे बोला कि मैं आपके यहाँ पे 2-4 मैट्रेसेस लगाता हूँ, एयर मैट्रेसेस. फोटो में दिख रहा है ना? वैसे एयर मैट्रेसेस लगाता हूँ, उनको रेंट पे बेचता हूँ. That is where air mattress, B&B, bread and breakfast, which is a concept in US. This is where the name comes from. So do you see, उसको क्या लगा? कुछ नहीं, बस करके देखने का एक जज्बा चाहिए. He did nothing, just करके देखते हैं. No investment, nothing, just करके देखते. You have an idea, just do it. Just do it right now. You have the luxury. इसके बाद जब जॉब में जाओगे कोई आपको भाव डालेगा कि ये तेरा आइडिया कभी कुछ नहीं होगा, चुपचाप जॉब पे है. उसके बाद शादी हो जाएगी, उसके पीछे लोग रहेंगे, बच्चे हो जाएंगे. You will never be able to do that. Right now is the only time you can experiment. कुछ भी आइडिया है करके देखो. What is the downside? There is so much of profit and no loss, right? So that brings me to a point. Let's say yes to each and every experience. कुछ भी चीज अगर आपके सामने आ रही है, definitely say yes. Professors would vouch for it. अगर TYBMS का चेक कलेक्शन करना है IB के लिए, करेगा yes. ढोलताशा पतक कुछ तो था तभी मी बुलटकर, उसको लीड करेगा yes. Dimensions करेगा yes. So with that experience of mine, I think I have learned a lot of things and I have understood what to do, and most importantly, what things I shouldn't do. वो मुझे समझ आया because I said yes to everything. Our age is the best age to have new experiences. Because one, no downside, and second, we are able to quickly shift our minds from one thing to the other. So this is just a small story. ये एक मेरा mock interview है. It has 93K views today. And you know how it started? एक दिन मैं IMS जाता था, IMS थाने, and उधर वो प्रोफेसर ने पूछा क्लास में कि कौन मॉक इंटरव्यू देना चाहता है. As I said, मैं सबको यस बोलता था. मैंने हाथ उठाया. Around इतने ही बच्चे थे, 100-150 थे. No one raised their hand. No one. And today, because of this video, ये अभी 3 साल या 2 साल हुए हैं, every MBA season जो अभी चल रहा है, मुझे at least 50 मैसेजेस आते हैं saying सर आपका मैंने इंटरव्यू देखा, प्लीज गाइड करो. बोले तो सर मत बोलो और मैं क्या गाइड करूँ. That is the impression that I have for 50 people every batch, and 90K people have watched my interview and are probably liking it because just a simple yes. Anyone from that 150 could have said yes. Did they? No. Did I? Yes. And it turned out into something beautiful, जिसका मुझे आज तक लोग मैसेज कर रहे हैं. The second thing is this Trekkers United का फोटो ऐसे ही डाला है so that I remember कि वो भी एक चीज है. So Trekkers United also one day he asked me कि करेगा क्या, ऐसा कुछ है, पे नहीं दूंगा. The founder कि बस आजा ट्रैक लीड कर ले, पे वगैरह कुछ नहीं रहेगा. When I was 19 ना तभी मैंने स्टार्ट किया. तो I said yes because as I said मैं सबको yes बोलता हूँ. And now I am able to, I have that position in that company कि मुझे जब जाना चाहिए मैं जाता हूँ. वो तो भाई मैं ये वीकेंड फ्री हूँ, मुझे कोई ट्रिप पे भेज दे तो भेज देता है. मुझे 20-25 हज़ार मिल जाता है उसका. मुझे नए लोग मिलते हैं दैट कैन प्रोबेबली कन्वर्ट इनटू माय क्लाइंट्स. सबसे बड़ा वो कनेक्शन बनता है एंड फ्री में घूमने को मिलता है इंटरनेशनल इफ आई वांट. सो जस्ट सेइंग एंड यस हैज गिवन मी एन एक्सपीरियंस दैट मैं बच्चों को बताऊंगा अपने. Just saying and yes. I'm sure when I'm saying this, see why I'm giving you these examples is not because I have done this. I want you to relate with some situations in your life. I'm sure ये सुन के एक तो चीज़ लगी रहेगी कि हाँ यार कभी मुझे भी किसी ने something along those lines पूछा था. If I could have said yes, what was the downside? So that is what I want you to think. कि how many experiences or how many opportunities did you not say yes to, and probably missed out on something great. And yeah, each and every experience, अभी लोगों को नहीं समझ में आता है, but MBA में जब पहुंचते हो या जब जॉब चाहिए ना, तो हर एक चीज एक CV पॉइंटर बोलते हैं. Everything is a CV pointer, and the more weird your CV points are, the more varied I would say, the better you are as a personality.
इन टूडेज डे लोगों को नहीं चाहिए कि आप एक ही चीज़ में किसी पिटे बस पढ़ाई कर रहे हो. People want CV reviewers want to see ये सब weird and different stuff because that shows कि you are a problem solver. You have had various experiences in life. When on job आपको कुछ questions आएंगे, कुछ doubts आएंगे, कुछ challenges आएंगे, you will be able to solve them because you have had so much experience in your life. So कुछ नहीं तो at least CV में एक point डालने को add हो जाए. No downside, definitely say yes to any experience. Now this is a lesson number 2 is not staying where you are and always getting out of your comfort zone. Looking back, I started from डोंबिवली में मेरा स्कूल था. डोंबिवली स्कूल, फिर कहकर गए कॉलेज को, लोगों ने तभी भी मॉडल कॉलेज दिया जो डोंबिवली में ही था. 11th 12th सोमया में गया. उसके बाद उधर से कहकर आया. कहकर से जानबूझ के दूसरे कैंपस में जाना है आउटसाइड महाराष्ट्र बोल के XLR है दिल्ली का. तो ये सब प्रोसेस में आफ्टर when I'm coming back to my business right now, my school friends, some of them are just where they are. उधर ही है. डोंबिवली का कॉलेज चूज किया, डोंबिवली का 11th 12th चूज किया, डोंबिवली का बैचलर्स चूज किया, डोंबिवली में ही मास्टर्स किया, जॉब भी डोंबिवली में कर रहे हैं. क्या ग्रोथ आएगी? लॉजिकली सोचो क्या ग्रोथ आएगी. फिर रीजन बता दें मम्मी पापा ने. ठीक है, बट मम्मी पापा को कन्विंस करना भी एक स्किल है. दैट इज समथिंग यू नीड टू हैव. or take help from other relatives. That we all know how to get it done. If you have that enough will, अगर झगड़े होंगे ही तो वो भी हाँ बोल ही देंगे. So get out of your comfort zone. I've taken so many decisions because of only one reason कि comfort zone के बाहर जाने को मिल रहा है ना कर लेता हूँ. कुछ तो अलग. You know, I could have said no to this because this is also me getting out of my comfort zone. You know, I have not done this before. ऐसे, you know, as a lecturer, so I could have said no, but you know, again saying yes to everything. So if something is pushing you out of your comfort zone, definitely go for it. Because or else लोग अगर आप नहीं करोगे ना तो आपके बाजू में जो बैठा है वो कर लेगा. एंड 10 साल बाद 20 साल बाद लोग बोलेंगे अरे भाई तू कहाँ पहुँच गया यार. ऐसे अपने मम्मी पापा बता देना कि मेरा एक दोस्त था, हम कॉलेज में साथ में बैठते थे, अब वो कहीं और पहुँच गया. मैं यही सबके मम्मी मतलब मेरे पापा तो बोलते हैं. Why? Because that guy took the leap that you did not, Papa. I have no one to tell him, but something that we can learn, right, from his experience. That is what he is also trying to say. Do that, right? So, if you want, आपके बाजू वाला करेगा, and उसका नाम आप अपने बच्चों को बताओगे कि ये मेरे साथ बैठा था, वो आगे चला गया, मैं यहीं रहा. And ये मुझे दिख रहा है मेरे दोस्तों के साथ होते हुए कि वो वही है. मैं दुनिया घूम के आया नहीं बोलूँगा, बट बहुत चीज़ देख के आया वो वही है. And I am earning probably 10 times what they are earning. अगर पैसों की भी बात करनी हो तो डोंबिवली में ही रहेंगे. So that is the difference. The next is make systems and habits. And अभी मेरी तो जिंदगी खत्म नहीं हुई, but I think these systems and habits which we make right now. Anyone has read the book Atomic Habits? 1. Anyone else? 2. Okay, great. 3. 4. It's a famous book. How many of you are doing things that it said? बाद में दिखाता हूँ. This is what my phone looks like. I think everyone's phone, कितना भी busy, not busy, ऐसा ही दिखना चाहिए. First is news because I am into finance. I have to be up to date with the news. I called myself, my parents called myself till तक जब तक डायमेंशंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आएगी कि तू सब भूलता है. आई कन्विंस माई सेल्फ हाँ मैं सब भूलता हूँ, कुछ याद नहीं रहता. आई एम अ वेरी अनऑर्गेनाइज्ड पर्सन. आई एक्सेप्टेड दैट अबाउट माई सेल्फ. प्लीज डोंट. एवरीथिंग अबाउट योर सेल्फ दैट यू हेट, डोंट एक्सेप्ट. Make every effort possible to change that. You hate it, right, about yourself. Then what are you doing to change that about yourself? I started this. This worked for me. If anyone is in the same boat, probably might work for you. Any and everything that मुझे काम याद आता है, मैं इसमें लिखता हूँ. This is my task का sheet. इसमें भी अभी मैंने 2 बनाए हैं. एक personal JTBD which is jobs to be done, and नीचे है work which is मंगलमूर्ति JTBD, ऑफिस का काम to be done. उसके साथ उसका एवरीडे का डेडलाइन भी है. सो मुझे कुछ भी आज मैं फ्रॉम दैट पर्सन टू दिस पर्सन टुडे नथिंग दैट समवन टेल्स मी टू डू आई एवर फॉरगेट. कभी भी नहीं. मेरे पापा मुझे डांटते थे, आज वो मुझे बताते हैं प्लीज मुझे याद दिलाएगा 3 दिन बाद, बिकॉज मेरी ये मैंने सिस्टम बना दी. यू नो, सो दिस एंड देन योर कैलेंडर
should have things like this, reminders. अभी सारे खत्म हो गए, but this सबके फोन में होना चाहिए. This is how my calendar looks. Am I a very big CEO? No. This is आज सुबह का फोटो है ये. I think आज सुबह का फोटो है. This is what my calendar looks like. I'm not a big CEO, but at least I'm preparing to be one. At least I'm pretending to be one. So that when I actually have the chance to become one, my systems are ready. तो बोलते हैं ना, बिल्डिंगचा पाया उभा केला आहे. आता बिल्डिंग त्याच्यावर होपफुली बनवी, माहित नाही, but hopefully. So this is what my laptop screen looks like. Same thing, but just in a better way. Because when you are organized, your screen, your space is organized, everything that Atomic Habits has mentioned, by the way, nothing different. मेरा कुछ idea नहीं. I'm just implementing what I'm learning. So implement things, make systems, make habits, change what you hate about yourself. Because अभी करोगे, eventually there was a मिट्टी का, बोला रहता है, you can shape it only till a time. Then it solidifies, and that is true. अपने मम्मी पापा की सोच नहीं बदलेगी, अपने बदलते हैं. We used to like something or someone different 5 years ago, and आज हम किसी और पे. मम्मी पापा ऐसा करते हैं क्या? Hopefully not. So what I'm trying to say is, अभी you can change. You have a dynamic thought process. तभी अपने हैबिट्स चेंज करो, अपने बारे में के जो भी हेटरेड है वो सारी चीजें चेंज करने को एफर्ट्स डालो. Like what I said, I have not achieved anything, but at least I am ready for it. At least the systems are in place. This is the same, just a screenshot. This is habit stacks, जो again atomic habit में बोला गया है. अगर आप रीड करोगे आपको समझेगा. Those habit stacks are on my whiteboard just in right front of my bed. As soon as I wake up, I know what habits I have to follow. Again, I'm trying to build those habits. नहीं है मेरे में अभी, but at least I'm trying. I'm putting a conscious effort. Last but not the least, college life comes once. So please make sure to have as much fun as possible. मेरा YouTube पे शुभंकर देखने जा रहा हूँ, एक D22 मेमोरीज वीडियो करके है और मेरी Instagram पे भी है. तो उसमें आपको दिखेगा हमने इतना मजा किया है. I would like to give an example. नीति मैम का ही. I remember vividly one day, कभी भी मैं कॉलेज दोस्तों को मिलता हूँ BMS के, सारे मुझे पूछते हैं. मैंने मतलब अभी 2-3 लोगों को बताया कि मैं जा रहा हूँ वो लेक्चर देने. एंड नीति मैम ने क्यों? बिकॉज वन फाइन डे जब कुछ पेपर डिस्ट्रीब्यूट हो रहे थे, एवरी पर्सन ऑफ द बैच वॉज प्रेजेंट एंड मैम ने एटलीस्ट 20 मिनट मुझे अकेले को डांटा है. स्पेसिफिकली शुभंकर की तू लेक्चरला येत नाही, तुझं बिलकुल सिरियसनेस नाही आहे, तुला डायमेन्शन वगैरे करायचं आहे, पण BMSचं काय पुढे आयुष्यात कधीच फायदा नाही येणार डायमेन्शनचा. ऑल आय अग्री, बट सेम मैम हैज प्रेज्ड मी फॉर 30 मिनट्स जिस दिन रिजल्ट आया, बिकॉज द CGPA सेड 9.8. एंड उस दिन के बाद से मैं लेक्चर आने लगा, थोड़ा सीरियस हुआ, बिकॉज लगता है ना 20 मिनट सबके सामने, और दैट हैज टू बी. सो गाइस, fun is the most important thing. Never leave that out. I'm not saying कि इतना serious हो जाओ कि रुके आदमी बनो, not at all. And believe me, dimensions या मतलब मैं तो dimensions ही बोलूँगा, इसमें बहुत मजा है. दूसरे कमिटीज का मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, राजेश सर है यहाँ पे, तो सब में बहुत मजा है. हमने इतना, अरे राजेश सर के साथ हमने इतना मजा किया है, रात भर हम नाइट मारते हैं डायमेंशन में. वो भी बोलना नहीं चाहिए अभी ये सब कर रहे हैं कि नहीं पता नहीं, बट हम रात भर कॉलेज में सोए हैं, कॉलेज में नहाए हैं, क्या कुछ नहीं किया. हमने कांच फोड़े हैं कॉलेज के, वॉलीबॉल खेलते क्रिकेट खेलते. सो वी हैव हैड सो मच फन. आई एम श्योर फोटोज आज ऐसे ज़्यादा तो रात के ही है, बिकॉज हम कभी इसके पहले गए नहीं, कुछ काम था क्या नहीं, बट जस्ट मजे का. सो डोंट लूज आउट ऑन फन. इसके बाद में MBA कॉलेज वगैरह ठीक है रहता है. एक तो उधर सब बुढ़े लोग रहते हैं. I was 22, the average batch age was 26. सब लोग बोल रहे हैं भाई मेरे को शादी करनी है, बोल रहा हूँ मैं शादी का आपसे नहीं सोचूं. So very different environment. Everybody is so competitive because everyone is fighting for that same job. Here you don't have that. So जो लोग बोलते हैं ना कि यार बाद में मजे करने को तो अभी टाइम है एक्सेट्रा, I don't think so. कैरेक्टर मतलब बैचलर्स में is the best time to have fun, where you can have fun without any consequences. So don't forget to have fun.
which goes beyond the academic and professional stuff. Life is short, ask around. I have that regret. And अभी वो कॉलेज में है तो बात कर सकते हैं. I have that regret, boys. कॉलेज का टाइम अच्छा रहता है. Life is short, ask around. And now थोड़ा टाइम है अपने पास. So let's talk about something. Okay, इधर तक. Any questions, please? Come on, I want some questions. नहीं तो मजा नहीं है. Come on, dimensions वाले लोग. Sir. My question is, I've been talking to everyone in the college, to the student, and syllabus is fine. It will help you out 10%, 20% of your career guidance. But what about the experience? What about the actual learning? So does this dimension, does this super or any other activity help you out in any other form? Everyone heard the question, right? I think it helps me out much more than academics. Definitely. And I think many of you would also reciprocate जो अभी already वो experience से जा चुके हैं. Because see, after a point, आजकल की दुनिया तो ऐसी है, and sir would also agree कि what matters is not your bookish knowledge but your people skills. कोई भी जॉब, इवन बेसिक डेटा एंट्री जॉब रहेगा, उधर भी पीपल स्किल्स ही मैटर करते हैं. अगर आपको मैनेजर बनना है तो पीपल स्किल्स, मैनेजिंग पीपल, मैनेजिंग इमोशंस, मैनेजिंग फाइट्स, सब कुछ मैटर करता है. टेल मी व्हाट डू यू थिंक द सीईओ डज? कम ऑन, आंसर्स प्लीज. सीईओ क्या करता है अपनी कंपनी में? रतन टाटा क्या करता है? अंबानी क्या करता है? क्या वो खुद जाके, अभी अंबानी क्या खुद जाके पेट्रोल बनाता है? आई डोंट थिंक ही हैज विजिटेड हिज पेट्रोल रिफाइनरी एवर. क्या करता है? आंसर्स? Delegate? Yes, absolutely. Decisions? Day-to-day difficult decisions. Day-to-day difficult decisions? Absolutely. What else? Defining work to people. Assigning work to people? Yes, absolutely. Delegate. What else? क्या? Leading. Okay, correct. Making connections. Making with, connections. Industrial like competitions. Making collaborations probably? Absolutely. Making collaborations so that my business can grow. Absolutely. जैसे अभी जियो ने BP, which is British Petroleum के साथ मिलके एक पेट्रोल पंप चालू किया. Collaborations. What else? Networking. Sir, each and everything I have done when I was chief coordinator. Everything that you said. Delegate? Yes, वही तो मेरा काम था. 600 लोग थे हमारे टीम में, मेरे साथ में 660. सबको डेलीगेट करना. 11 डिपार्टमेंट्स थे. टेकिंग हार्ड डिसीजन और कुछ बोला. आई हैव लिटरली, ठीक है चलो वेस्ट है, तो वो डिसीजंस, टेकिंग डिसीजंस और डे टू डे चीज़ें. अभी जैसे सीपी हो रहा था, 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है. फर्स्ट फंक्शन ऑफ द एंटायर ईयर एंड 3 दिन लगातार बारिश हो रही है, तो पूरा कीचड़ है. क्या करें? यू नो, डे टू डे डिसीजंस. सो एवरीथिंग, टू आंसर फर्स्ट क्वेश्चन, everything that you might have to do in your life, you will do it if you are at a leading position in any of the fest or any of the company. It absolutely helps and it really changes how you are. अभी जैसे मैं MBA में था, मैंने बोला मेरे साथ 27 years के लिए MBA excelled as among the top 5 to top 7 colleges in the country. तो top 7 colleges में top of the India आता है, ठीक है? तो उधर भी जाके 27 साल के लोग आके मुझे पूछते थे, भाई ये क्या करूँ, वो क्या करूँ. उनके दोस्तों को मैं गंदा था फाइनेंस में. सो व्हाई? बिकॉज दे नेवर हैड दिस एक्सपीरियंस, दे नेवर हैड दिस चांस टू डू व्हाट आई डिड इन माय कॉलेज. एंड केकर डायमेंशंस हैज गिवन मी दैट अपॉर्चुनिटी. यू हैव दैट अपॉर्चुनिटी. इफ यू आर नॉट इन एनी कमिटी, अभी भी टाइम है. आई हैड पीपल इन माई कमिटी जो 3rd ईयर में आए थे एक्स डायमेंशन. अभी भी टाइम है, मज़ा तो है ही, बट दीज थिंग्स यू विल नेवर लर्न. क्योंकि कैसा है, पैसा तो अपना है नहीं, पैसा तो स्पॉन्सर का है. मैंने शुगर कॉस्मेटिक्स के साथ 1-on-1 बात की थी उनके CEO के साथ. दैट टाइम व्हेन आई वाज व्हाट 20-21, वो SBI के साथ 1,20,000 का स्पॉन्सरशिप लाया था. पूरा वाइट पर नहीं बात कर. तो ये सारी चीज़ें, व्हेन आई एम माई सेल्फ व्हाट, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं, मैं कुछ कमाता, बैकर्स यूनाइटेड से थोड़ा बहुत कमा लेता था. तो ये एक्सपीरियंस आपको जिंदगी में विद जीरो, क्या होगा वर्स्ट केस, कॉलेज का नाम खराब होगा, मेरा क्या, मैं तो अगले साल जाने वाला हूँ.
तो इतना लो रिस्क हाई रिवॉर्ड रेशियो कभी नहीं मिलेगा. नाउ इज द टाइम. ठीक है, तो डेफिनेटली कॉलेज यू नो क्या बोलते हैं वो फेस्ट वगैरह डेफिनेटली हेल्प यू. व्हाट एल्स? सर ने तो बस शुरुआत करके दी. यस. As you said, you joined like the lectures in IPL. How did you exactly get into that? Like, what experience did you have? Like, did you just join? Did you know someone? What exactly did you do to like get into that? Okay, I will answer that and also I will tell you how you can do it because that will help you better. So what happened with me was मेरा फर्स्ट ट्रैक में गया था 9th खत्म करके 10th जब मैं जा रहा था तब, या 10th जस्ट खत्म किया था. एंड तभी ये कंपनी बहुत नई थी, मेरे भाई के ही दोस्त की थी, तो मैं उनके साथ गया लगातार 7-8 बार गया. उसके बाद इतना पसंद आया कि बहुत ट्रैक्स गया महाराष्ट्र के अंदर. एंड देन मैं सोमा में तभी कॉलेज लीडर था, 500 लोग को लीड कर रहा था, तो उसको लगा कि भाई इसके बहुत इंस्टाग्राम फॉलोअर्स है, ये मेरी स्टोरी डालेगा तो मेरा फायदा होगा, उसके बदले में इसको लीड करने का काम देगा. दैट इज हाउ ही ऑफर्ड मी. आई सेड यस एंड तब से रेस्ट इज हिस्ट्री. व्हाट यू कैन डू इज बहुत लोग ऐसे फ्रीलांसर ट्रैक लीडर्स को ढूंढ रहे हैं. जस्ट मेक अ लिस्ट ऑफ दोस कंपनीज. देयर आर हंड्रेड्स. मेरे दोस्तों को जब मैंने बोला 2-3 लोगों ने किया है ऐसे दूसरे कंपनीज के साथ कि मुझे पूछ के मैंने बोला कि कंपनी को ट्रैकर कर लेंगे एंड उन्होंने कर दी. सो दैट इज नथिंग, वन टाइम बेसिस रहता है. आप जाओ ट्रिप पे जाओ, पे मिलेगा, सब ऑर्गेनाइज करो. ऑर्गेनाइज भी नहीं, बुकिंग भी वही करता है, सिर्फ जाना है, गेम्स वगैरह लेने हैं उनके साथ, मेकिंग श्योर ऑल कंप्लेंट्स आर एड्रेस्ड, आ जाना. दैट इज व्हाट इट वर्क्स लाइक. इट इज लाइक अ फ्रीलांस जॉब, यू विल गेट इट. जस्ट बहुत लोगों को अप्रोच कर रहा हूँ. But rather than that one specific thing, what I think you should learn from that fact is, मैंने ऐसे 1000 चीज़ों को yes बोला, only 2 या 3 मैंने यहाँ पे दिखाया, because only those worked out well. अभी जैसे for example वो ये पता है बी यूनिक के साथ वो एक रहता था तुषार खेर का मैनेजर मेरे किसी का तो दोस्त था. उसने बोला उसका एक वीडियो म्यूजिक वीडियो आ रहा था, अरे एक ही म्यूजिक वीडियो उसका यूट्यूब पे देखोगे तो मिल जाएगा, उसके कास्ट में आएगा क्या? तो मैंने हाँ बोल दिया जैसा है ऐसे ही शो एवरीथिंग. एंड इट वाज सो बोरिंग. मेरा एक वीक चला गया एंड इट वाज यूजलेस. इतना गंदा वीडियो है भाई, मैं भी गंदा दिख रहा हूँ सब कुछ. बट वही वो तो मैं बोल भी नहीं रहा. तो आपको ऐसे 1000 चीज़ों को हाँ बोलना होगा, कुछ 2-3 चीज़ें वर्कआउट कर लेंगे. ठीक है, व्हाट एल्स? So you've done a lot of extracurriculums, managed academics also. So how was your schedule day to day? Like, was it really that hectic? How were you able to get your you time as well? तो मैंने टोल्ड यू ना कि वो 50 लोग मेरे को एवरी MBA सीजन मैसेज करते हैं, या इवन सम पीपल फ्रॉम डायमेंशंस जूनियर्स. तो सबका यही सवाल रहता है, हाउ डिड यू मैनेज योर एक्स्ट्रा करिकुलर्स एज वेल एज, मतलब CGPA 9.88 कैसे लाया एंड प्लस चीफ कोऑर्डिनेटर कैसे था डायमेंशन तक, बिकॉज यू गाइस कैन रिलेट टू दैट. My one simple but extremely powerful answer always is, जो आप वो मोमेंट पे कर रहे हो उसको अपना 1,00,000% डेडिकेशन दे दो. Okay? Seems very simple, but imagine अगर मैं 2 घंटा पढ़ाई कर रहा हूँ ना एवरी डे, विच इज डूएबल, पर मैं तभी और कुछ नहीं कर रहा हूँ, डायमेंशंस को मैं भूल जाता था एंड यहाँ आके क्लास में वगैरह बैठता था, 2 घंटा सिर्फ पढ़ाई करता था, डायमेंशंस गया पढ़. I don't care about dimensions that for those 2 hours, and for rest of the 8 hours I don't care about studies. Schedule, सुबह I used to come college को lectures attend करता था, after DT मैम told me to, तो lectures attend करता था. उसके बाद फिर dimensions पूरा दिन 7-8 बजे तक. उसके बाद घर जाके हमने ग्रुप बना लिया था, और हमारा एक ग्रुप था, I don't know if you know, but तुषार who was the accounts head, Enigma who was the back office head, मैम प्रोफेसर तो सबको जानते हैं, तो ये सब लोग हम मिल के ज़बरदस्ती 2 घंटा पढ़ाई करते ही थे. एंड तभी वी डिड नॉट यूज टू केयर अबाउट डायमेंशन, स्विच ऑफ करके वर्क करते. एंड आई थिंक दिस इज अ फॉर्मूला दैट वर्क्स फॉर एवरीथिंग इन लाइफ व्हेन आई हैव टू चैलेंज मल्टीपल थिंग्स. अभी जैसे ये टॉक के बारे में जो भी मैंने बनाया है वो कल रात 10 बजे से लेके आज सुबह 5:30 बजे सुबह के तक बनाया है. उसके पहले आई वॉज वर्किंग ऑन माई बिजनेस. आई डिड नॉट मतलब केयर अबाउट दिस टॉक. एंड जब मैं ये टॉक को कर रहा हूँ तो मैं और कुछ नहीं देख रहा हूँ, सिर्फ यही कर. इट इज़ वेरी सिंपल, बट इफ यू रियली इम्प्लीमेंट इट यू विल बी एबल टू मैनेज एवरीथिंग दैट यू वांट टू डू इन लाइफ साइमल्टेनियस. बिकॉज यही सवाल बाद में जाके अपने को आएंगे कि हाउ डू आई मैनेज फैमिली टाइम, हाउ डू आई मैनेज माई वर्क एंड माई फैमिली टाइम, हाउ डू आई मैनेज माई बॉयज का साथ टाइम एंड माई वाइफ के साथ टाइम. आई थिंक मेरा आंसर तो यही रहेगा भाई, लड़कों के साथ तो मुझे फोन मत कर. सो समथिंग लाइक दैट. व्हाट एल्स?
for MBA, in your student portfolio, what were the key highlighters? Like, did your extracurricular way more than your academics or something like that? Way more, yes, definitely. Because बहुत ही ज़्यादा अचीवमेंट्स थे एक्स्ट्रा करिकुलर साइड में और एकेडमिक्स में इतने नहीं थे. बिकॉज एज आई गिव यू अ टिप कि आप सर्टिफिकेशंस करो, कोर्सेज करो, वो सब मैंने नहीं किया बिकॉज मैं पूरा ही एक्स्ट्रा करिकुलर में चला गया, विच इज़ समथिंग दैट यू शुड लर्न फ्रॉम माई मिस्टेक कि थोड़ा पढ़ाई पे भी ध्यान दो पहले से एंड सर्टिफिकेशंस वो सब करो. इफ दैट आई वुड हैव डन इट वुड हैव बीन अ बैलेंस, यू नो. अभी मैं एक्सेलआर से गोल्ड मेडल जाने तो एक्सेलआर में था. एक्सेलआर से बेटर कॉलेजेस है क्या? यस. इफ आई वुड हैव लाइक द क्वेश्चन दैट यू आस्क्ड, इफ आई वुड हैव हैड अ बैलेंस्ड व्हाट यू सेड portfolio, yeah, CV, then it would have been probably again I would have been from IIT. So yes, I was not balanced. It was very skewed towards extracurricular. Just one thing था 9.89 CGPA. I was not a topper by the way. मेरे ऊपर भी था एक या दो जन तो थे, तो एक ही था क्या? Okay, मैम बोल रहे तो एक ही था. तो I was not a topper. So अगर topper रहता ना तो वो एक बहुत बड़ा point होता. I was not a topper, but 9.89 is good enough. Anything else? नहीं तो as I said, okay. As I said, now comes my favorite topic, जो मैं दिन ब दिन कर रहा हूँ, which is investments. Because I am doing this from such a while, ARN बोलते हैं, इसलिए I am a MP certified mutual fund distributor, SEBI के साथ रजिस्टर्ड हूँ. That is from 5 years. तो मेरे कॉलेज के सेकेंड ईयर के आसपास मैंने वो स्टार्ट किया था. So that is my favorite topic. I have been doing that from a while. So I think I can help you here. Savings. I'm telling you a formula. Income minus expenses is equal to savings, right? Correct, right? Anything wrong? बराबर बोल रहा हूँ ना? क्या हम ये कर पाते हैं? क्या आप कर रहे हो? इनकम आता है, मम्मी पापा, इनकम सोर्सेस कुड बी एम्पल. मम्मी पापा से आता है, दादा दादी से आता है, और कुछ आई एम नॉट श्योर अगर होगा तो कुछ स्मॉल बिजनेस है, साइड हसल है, बट मेनली दीज टू. रिलेटिव से आता है बर्थडे पे, दिवाली पे, और ये सब वो इनकम आया. हम एक्सपेंसेस करके क्या कुछ सेव कर पाते हैं? फॉर्मूला करेक्ट है ना? नहीं, एब्सोल्युटली नहीं. बिकॉज इट शुड बी इनकम माइनस सेविंग्स इज इक्वल टू एक्सपेंसेस. ये मुझे मेरे पापा ने बताया था व्हेन आई बॉट माय फर्स्ट शेयर व्हेन आई वाज 8 years old. तो वॉरेन बफेट से थोड़ा जल्दी, विच वॉज कोक्यो कैमलिन. अभी तो कोक्यो और कैमलिन एक साथ है भी नहीं, अलग अलग हो गए. तब से मैं उनका शेयर होल्डर हूँ. एंड तभी मुझे मैं बहुत एक दिन ऐसे कहीं आई डोंट रिमेंबर बट कहीं तो जाना था, आई सॉ हार्ली डेविडसन्स बाइक. तभी बहुत फैट था, अभी कंपनी बंद पड़ गई है, रिसेंटली हीरो ने स्टार्ट की. बट तभी मुझे बहुत शौक आ गया था कि ये बाइक लेनी है, पापा ये बाइक लेनी है. एट 8 years of age he told me कि यूज दिस फॉर्मूला एंड तू 18 का जब होगा ना, मेरे नाम पे तू बाइक ले रहा है, तेरे नाम पे बाइक ले. जब तू 18 का होगा, तेरा जो सेविंग्स बचेगा, इनकम माइनस सेविंग्स इज इक्वल टू एक्सपेंसेस में से जो सेविंग्स होंगे स्टॉक मार्केट में डाला कर, मैं बताता हूँ कौन से स्टॉक्स, एंड जो भी तेरा किटी रहेगा और 18 years of एज, वो उससे हम बाइक लेंगे हार्ली डेविडसन तेरे नाम पे. तो अनफॉर्चुनेटली दैट डिड नॉट हैपन बिकॉज हार्ली डेविडसन आती है 8 लाख प्लस, मेरे हुए थे कुछ 4 लाख. सो दैट इज व्हाई आई कॉम्प्रोमाइज्ड ऑन अ BMW G310 GS at 18 years of my age with my own money. With what income? दादा दादी मम्मी पापा जो आपके पास भी है. बिकॉज इफ यू रियली डू द मैथ्स, 5,000 देते हैं, 1,000 देते हैं, उससे 500 भी बचाओगे और अच्छे स्टॉक्स में डालोगे, यू वुड बी एबल टू डू दिस विद इन 3 years बिकॉज आपका इनकम तो ज़्यादा है इन्फ्लेशन के साथ. सो दैट इज द फॉर्मूला इज इंपॉर्टेंट. इसीलिए जब SIP करते हैं वो डेट इस दिन पे सेट करनी है जिस दिन आपकी सैलरी आती है, उसके 2 दिन बाद. सैलरी आ गई, इनकम माइनस सेविंग्स, मेरी SIP कट गई, इज इक्वल टू एक्सपेंसेस. बैंक में जितने बचे 2 दिन बाद, वो मेरा बजट है फॉर द एक्सपेंसेस. दैट इज व्हाई SIP शुड ऑलवेज बी ऑन द 2 or 3 days आफ्टर योर सैलरी. नाउ कम्स द क्वेश्चन. अभी पूरा वी आर चेंजिंग गियर्स. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाई इन्वेस्टमेंट्स, पर्सनल इन्वेस्टमेंट्स, वो सब बात है. व्हाई शुड वी इन्वेस्ट? सी, इंडिया इज ग्रोइंग रैपिडली, एवरीवन एग्रीज. India is the fastest growing major economy. It is not the fastest growing economy. कभी भी ये बोलो मत, being BMS students. It is the fastest growing major economy. Major economies कौन सा है? Top 10. उसमें से fastest growing India है.
It is growing, say economy is growing at say 7.5%. आपके पापा, आपका घर, your household, how is it growing with that growing journey of India? It is not, because it is growing. Your household, your खर्चे, your income is growing by only that percentage जितना बॉस सैलरी बढ़ाता है. सैलरी कितना बढ़ाता है बॉस? ऑन एन एवरेज 5 to 10%. ऑन एन एवरेज मोस्टली 5-7%. बहुत साल तो सैलरी बढ़ाता भी नहीं है. तो आर यू अ पार्ट ऑफ इंडियाज ग्रोथ जर्नी? दिस इज इंडिया, दिस इज इंडिया इन 2020 इकोनॉमी ऑफ इंडिया. यहाँ से वो 27 तक यहाँ जा सकती है, इज द एक्सपेक्टेशन. ये ग्रोइंग में कंपनीज के प्रॉफिट डबल हो रहे हैं. अभी अगर फॉर एग्जांपल कोई ब्रिज बना रहा है, अम्बुजा सीमेंट यूज कर रहा है, नितिन गडकरी ने बोला इतना इतना करोड़ ऑफ बजट आई एम अलॉटिंग टू यू. कंपनीज का प्रॉफिट बढ़ रहा है बिकॉज एवरीवेयर जहाँ पे पहले कच्चा रोड था अभी बड़ा रोड आ रहा है. अभी तो कचरा वाला भी स्कूटी से आ रहा है, तो उनका कंपनी का सेल्स भी बढ़ रहा है. ऑल कंपनीज आर ग्रोइंग इन देयर बिजनेस. दैट इज व्हाई इंडिया इज ग्रोइंग इन देयर इकोनॉमी. हाउ आर यू बीइंग अ पार्ट ऑफ दैट इकोनॉमिक ग्रोथ? यू आर नॉट, except if you are investing in those companies which are growing. This is the fundamental core of why you should invest. ये बहुत rarely लोग बनाएंगे. And finance को ना एक बहुत अच्छी आदत है. For their favor, they will make everything sound very fancy. CAGR, compounded annual growth. और क्या क्या fancy words है? Sharpe ratio, Jensen ratio, Trainer's ratio, और Sortino's measure. Everything is made, can be explained in simple English, but वो बहुत complicated है. So this is the fundamental of things. Inflation, real value of 100 rupees, आज का 100 rupees will be worth only 11 rupees in 30 years if the inflation stays at 7% per annum. ये blue जो है वो 1990 का पेट्रोल रेट है 9.84 rupees, आज वो 101 rupees है. मतलब आपके पास अगर आज 1 करोड़ है, वो 30 years बाद will probably be equal to probably few lakhs, 10 lakhs, 20 lakhs. So inflation तो 7% से ग्रो हो रहा है. How is your money growing with it? ये है पिछले 1980 से लेकर 22 का डेटा. Sensex gave 15% return, gold gave 8% return because this data is till 2022. 2022 इसलिए ये 8.85 है. अगर 26 रहता तो ये थोड़ा इधर रहता because फिलहाल गोल्ड ने बहुत रिटर्न किए. Nevertheless, बैंक एफडी को 8 ही दे रहा है, बहुत कम दे रहा है. What I'm trying to say is अगर inflation 7% है, मतलब आपका money is eroding at a rate of 7%. How much is your money growing? If you are investing in FD, which is at आज के तारीख में 7%, your money is not growing. If you are investing in equities, मतलब stock market, only then your money is beating the inflation. मतलब 20 साल बाद आपका पैसा भी ग्रो होगा, even though inflation भी बढ़ रहा है. So that is why investing in equities is inevitable, absolutely. अब लोग बोलते हैं स्टॉक मार्केट रिस्की है. Absolutely risky है, but I would say only in the short term. This is 1 year rolling return. This थोड़ा टेक्निकल है, but ध्यान दोगे तो समझ में आएगा. March 79 में Sensex was 100. I hope I don't have to tell you what Sensex is. March 79 में Sensex was 100. March 80 में 129 हुआ. अगर मैं इधर डालता पैसे और इधर निकालता तो 29% का ग्रोथ हो रहा है. ऐसे ही मैं अगर एक साल में डाल रहा हूँ, एक साल में निकाल रहा हूँ, which is called churning. ये साल डाल रहा हूँ, अगले साल निकाल रहा हूँ. ये रेड है ना, ये सारे मेरे लॉसेस हैं. इतने सालों में 43 ऑब्जर्वेशंस है, उसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ गेन इज 29 आउट ऑफ 43. मतलब कितने बार लॉस हुआ? 43 माइनस 29 जो भी नंबर आता है, उतने बार मेरा लॉस हुआ. अगर मैं ये साल डाल रहा हूँ, अगले साल इमीडिएटली निकाल रहा हूँ. 45 स्टिक अराउंड फॉर 5 years. मैंने मार्च 79 में 100 के रेट पे डाला और 5 साल बाद पैसा निकाला. 20% ग्रो हो रहा है. ऐसे अगर मैं देखूं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेन इज 36 आउट ऑफ 39. मतलब लॉस होने का चांस कितना? ओनली 3 टाइम्स आउट ऑफ 39 ऑब्जर्वेशन. ये कितने इयर्स है? कैन समबडी डू द मैथ? मार्च 1979 से लेके 2022. हाउ मेनी इयर्स? 23 years. सॉरी 23. आर यू श्योर? Yeah. 79 to 2022. 43. Wow, 43. 43 years. I think 43. 2020. 2022. Or 2022. हाँ 2022. 43 years. तो 43 years में से सिर्फ
3 बार मेरा लॉस होता है अगर मैं 5 साल तक इन्वेस्टेड रहता हूँ। इसलिए बोलते हैं कि इक्विटीज में लॉन्ग टर्म गेम देखे भूल जाए और आगे चलते हैं। 10 इयर्स रिटर्न में सिर्फ एक बार और 15 साल अगर मैं पैसे रख रहा हूँ तो चांस ऑफ लूजिंग माय मनी इज 0। सो डोंट बी अफ्रेड ऑफ इक्विटीज। कोई भी अगर आपको बता रहा है एज अ बीएमएस स्टूडेंट यू शुड हैव दिस डेटा कि लोग बोलते हैं लॉन्ग टर्म तक इक्विटी में रखो, क्यों? ये रीजन है। उनको ये चार्ट दिखाओ, मुझे मैसेज करो, मैं भेजता हूँ। अब कितने लोग हैं जो ट्रेडिंग कर रहे हैं? स्टॉक ट्रेड, अरे बाप रे सर है तो मैं कैसे बोलूँ अभी कुछ? If you would have been invested entirely long term गेम January 1st 1990 से लेके 31st March 2022 तक, अगर आपने मैंने 1 लाख रुपए यहाँ डाला रहता 1st जनवरी को, तो 31st March 2022 को वो 1 लाख की वैल्यू 62 lakhs हो गई है। 62 lakhs CAGR terms में it is 13.71%. If I am invested for the entire these many years, which is equal to 11,778 days, 11,000 दिन में इन्वेस्ट किया, उसके बाद मेरा ये रिटर्न बन रहा है 1 लाख का 62 lakhs। अगर मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ which is टाइमिंग द मार्केट, मतलब लो पे खरीदो हाई पे बेचो, ये कर रहा हूँ मैं, हर दिन कर रहा हूँ, आज ले रहा हूँ कल बेच रहा हूँ, 2-3 दिन में बेच रहा हूँ। If in this 11,000 days if I would have missed only 40 days, 11,000 दिनों में से 40 दिन मिस करना एक ह्यूमन एरर हो सकता है कि नहीं? 40 दिन तो मैं समझो सोते रहा, 9:50 को मार्केट होता है मैं उठा ही नहीं। ये 40 दिन सिर्फ अगर मैंने मिस किए 11,000 दिनों में से, तो फिर मेरे 1 लाख के 62 lakhs होने के जगह 1 लाख के सिर्फ 4 lakhs, so loss of 62 lakhs minus 4 lakhs, इतना मेरा लॉस हुआ बिकॉज आई वाज डूइंग डे या फिर ट्रेडिंग। अगर मैं पूरा इन्वेस्टेड रहता लॉन्ग टर्म गेम के लिए तो मेरे 62 lakhs होता। दैट इज व्हाई स्टेइंग इन्वेस्टेड लॉन्ग टर्म इज फॉर इफ यू डोंट अंडरस्टैंड द मार्केट्स, लेके भूल जाओ, अच्छा है। इफ यू अंडरस्टैंड, इफ यू कैन टाइम दोस डेज एंड इफ यू डोंट मिस आउट ऑन दोस डेज, ठीक है, करो फिर। व्हाई नाउ? व्हाट इज द अर्जेंसी ऑफ इट? दिस मिस्टर ए started his investment at the age of 25, आप तो 19 हो। अगर आपने से कोई सोचा अभी क्यों इन्वेस्ट करना है, 10 साल बाद करता हूँ, मिस्टर बी ने भी यही बोला और उसने इन्वेस्टिंग स्टार्ट की 35 ईयर्स ऑफ एज पे। ये SIP कर रहा है 10,000 की, तो इसके 10,000 ही इन्वेस्टेड टिल 55 को उसको रिटायर होना है, तो 25 से लेके 55 कितने साल हुए? 30 ईयर्स। कितने मंथ हुए? 360 months, every month 10,000 की SIP, मतलब कितने lakhs हुए? 36 lakhs, ओके। ये बंदे ने, इसको भी 55 को रिटायर होना है, बस उसने ये सोचा कि अभी तो इन्वेस्ट करो 10 साल बाद करो, तो 10 years ही स्टार्टेड लेट। इसके वजह से 55 एज तक उसको 36 lakhs करने थे, वो बोला मिस्टर एज इतना ही मेरे को भी इन्वेस्ट करना है, तो उसको SIP करनी पड़ी 15,000, 10,000 के लगे 15,000, मतलब उसने ज़्यादा की SIP की, बट बिकॉज ही स्टार्टेड लेट he is the malik of only 1 crore 50 lakhs and that guy is the malik of 3 crores 50 lakhs. डबल पैसा है उसके बाद just because he started 10 years early. Why? Compounding ज़्यादा साल तक हुआ. Okay, so starting early is very important. Very relatable slide for all of us. दिख रहा है क्या सबको? अभी इस slide को नहीं बोलता हूँ. Cost of 1 pint of beer is ₹200, अभी तो बढ़ गया होगा, तो मैं पीता नहीं हूँ तो आई डोंट नो। और अमाउंट सेव पर ईयर, अगर मैं 52 बियर ओवर ईयर एक वीकेंड की भी बियर बचा रहा हूँ बस, और मैंने 52 वीकेंड्स रहते हैं एक साल में, अगर मैंने उतने बचाए 12% रिटर्न तो मार्केट में मिल ही जाता है, तो आफ्टर 35 ईयर मेरे पास 50 लाख है। कैन यू सेव 1 बियर एवरी वीकेंड एंड इन्वेस्ट 200 रुपए इनटू SIP, यू विल बी अ मालिक ऑफ 50 lakhs। उससे बड़ा अगर 18,000 1500 रुपए एवरी वीकेंड मूवीज जाने नहीं जाके आप उसको बचा रहे हो, तो यू विल बी अ मालिक ऑफ 87 lakhs। तो अभी अपने को स्कूल में बोला गया था कि अपनी लाइफ चालू होगी, अभी तो आप स्कूल में हो, जब 11th 12th में जाओगे, तो बाय द वे यू नो बिकॉज आई हैव गेट आउट ऑफ माय कंफर्ट जोन, मुझे पता है कि जूनियर कॉलेज ऐसा कंसेप्ट ही नहीं है इंडिया में कहीं पे, जस्ट हियर इन महाराष्ट्र, बिकॉज आई वेंट टू ए फन फैक्ट। Also, we say Kanda
देयर इज नो कांदा, इट इज प्याज apparently. तो मैं उधर जाके 2 महीने पहले कांदा बोलता, क्योंकि यहाँ पे कोई भी मतलब एक्सेप्ट महाराष्ट्रियंस भी सब लोग कांदा ही बोलते हैं, पानी पूरी वाला भी बोलता है कांदा चाहिए, उधर जाके मैंने बोला इट इज प्याज. 11th-12th में बोलते थे कि उसके बाद कॉलेज स्टार्ट, उसके बाद आपकी लाइफ स्टार्ट होगी. 11th-12th में बोला था कॉलेज के बाद मतलब बैचलर्स के बाद आपकी लाइफ स्टार्ट होगी. डू यू एग्री कि एटलीस्ट अभी तो आपकी लाइफ स्टार्ट होगी, इसके बाद बैचलर्स के बाद एटलीस्ट योर लाइफ विल स्टार्ट, राइट, द रियल लाइफ. यस, कम ऑन गाइस, यस. आई से इट हैज ऑलरेडी स्टार्टेड, बिकॉज वो लाइफ के लिए जो डिसीजंस आपको लेने हैं वो आपको आज लेने हैं. सो योर लाइफ जो हम बोल रहे हैं कि बाद में स्टार्ट होगी, बाद में स्टार्ट होगी, इट इज ऑलरेडी टेस्टिंग यू. बिकॉज मेरे में या मेरे कोई और दोस्त में, नॉट टू बोस्ट, और क्योंकि मैं यहाँ हूँ और वो नहीं है, व्हाट वाज द डिफरेंस? लाइफ वाज टेस्टिंग मी व्हेन आई वाज इन योर शूज. कि बंदे को अगर लाइफ में अच्छा करना है तो वो आज जो डिसीजंस ले रहा है आर गोइंग टू शेप दैट, एंड दैट वुड बी द डिफरेंस बिटवीन यू एंड आपके बाजू के लोग. बिकॉज लाइफ इज टेस्टिंग यू राइट नाउ, क्या डिसीजंस ले रहा है देखते हैं, उसके ऊपर इट विल रिवॉर्ड यू लेटर. सो दैट इज गोइंग टू बी द डिफरेंस बिटवीन यू और योर पियर्स, PEERS, peers. कि what decisions you make today. And I think that was about it. Thank you. Oh, any questions? But I think you guys are going to ask the question there again. तो इनके पूछने से तो एटलीस्ट पूछो. कैसा लगा guys? Good, something relevant. आगे हवाबाजी तो नहीं की ना, छोटी छोटी बातें बट काम की बातें. Yes? So, thank you so much for such an insightful, honest and engaging conversation. I'm sure today's session has given all of us a different perspective on college, life and the decisions that come with it. From academics and leadership to the networking, career choices, financial planning, personal growth, and taking opportunities beyond the classroom. Your journey has shown us that there is so much more to preparing for our future than simply earning a degree. And because this conversation with one of our alumni, I am so sure many of the students may have questions about their own career choices and experiences. We are now open the floor for some question answer session. If anyone has a question for sir, please raise your hand. Yes. I have 2 questions. So you did an MBA. What exactly was your specialization in the MBA? What was my specialization? Yeah. My specialization was entrepreneurship. Okay. Yeah, because I always knew कि I want to do a business for sure. मेरा ideally it should have been कि मैं कुछ नया करूँ अपना. But as I said कि probably if I would have started something in college, अभी कुछ निकलने वाला नहीं. If I would have started something in college itself, तो मेरे पास वो courage रहता कि मैं खुद का कुछ चालू कर पाऊँ. So that was my ideal goal कि कुछ खुद का चालू करूँ, तो इसलिए entrepreneurship मेरा day one से था. If not, I always knew कि family business करना ही है. So entrepreneurship was my specialization. And since you have a business like it's a third generation business Yes. in wealth management, I want to know what wealth management exactly is. Like what do you do? So, while investing, you have 2 options, okay? You can either invest on your own, which I hope BMS के बच्चे कर पाएंगे, especially BMS Finance के, because what we are teaching is not rocket science, okay? जो हम लोगों को मदद कर रहे हैं, वो बहुत simple चीज़ है, but लोगों को वो simple चीज़ें भी नहीं पता है. So what wealth management is basically someone you are, I wouldn't say hiring, but indirectly you are paying that company by commissions to help you with your investments, which includes goal planning कि भाई मुझे 10 साल में गाड़ी लेनी है, मुझे ऑप्टिमम प्लान बताओ. तो उसके लिए व्हाट वी यूजुअली डू इज रिस्क प्रोफाइलिंग. मतलब एक बंदा जो हमारे पास क्लाइंट आता है, उसके कितने नंबर ऑफ डिपेंडेबल्स है,
what is his source of income, what is the goal that he is planning for, and वो हिसाब से if it is a short term goal, we will have lower risk के investment alternatives, which probably includes debt schemes, which have fixed returns but lower returns. Okay, so वो है for someone who wants like within 1 year, 2 years, उसको बोलते हैं liquid schemes. Then there is something called as hybrid schemes, जिसमें आपका थोड़ा पैसा मार्केट में जा रहा है, थोड़ा डेट में रहता है. So that is hybrid schemes for someone who has a goal within 3 to 5 years. And then comes pure equity, large cap, small cap, mid cap funds, जो पूरा long term का है. So this is for retirement, बच्चों के शादी के लिए, etc. So this is what we do. When you come to us, we understand your risk profiling, we do your risk profiling, we understand your goals, and we give you an investment plan, जिससे आपका portfolio most risk adjusted returns दे. What does Sharp Jensen Trainer Beta Sortino measure? मैम ने मुझे बताया था, मुझे भी याद नहीं था. आप तो फिर भी कॉलेज में हो, मुझे तभी भी याद नहीं शायद से था, कॉलेज के बाद याद नहीं था. MBA में सब आपको पूछेंगे, एंड इफ यू नो इट ऑलरेडी यू वुड बी ऑलरेडी द टॉपर ऑफ द क्लास. बिलीव मी, अपने को लगता है MBA के बच्चे बहुत होशियार रहते हैं, नहीं रहते. यू जस्ट हैव टू नो द बेसिक्स, जो आपको नीति मैम ने सिखाया और राजेश सर और सारे प्रोफेसर. मुझे नीति मैम की बहुत याद आती है एवरी कोर्स एवरी टॉपिक में कि यार ये बताया था मैम ने, अभी याद नहीं आया. सो दे मेजर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स. एवरी पोर्टफोलियो रिटर्न्स तो देता है, बट वो रिटर्न्स लाने के लिए फॉर एवरी यूनिट ऑफ रिटर्न्स हाउ मच रिस्क इज द पोर्टफोलियो टेकिंग इज मेजर्ड बाय Sharpe. These are called risk ratios. So that is what we see. You know, तो ये सब करके हम इन्वेस्टमेंट्स की लिस्ट बनाते हैं. सो वी सिलेक्ट कौन से फंड्स अच्छे हैं. मार्केट में फिलहाल 3,500 म्यूचुअल फंड्स हैं, उनमें से कौन से अच्छे हैं, कौन से बुरे हैं, वो एनालाइज करना, रिस्क प्रोफाइलिंग करना, गोल प्लानिंग करना, एंड इन्वेस्टर को पूरा उसका प्लान बना के देना. दैट इज व्हाट वेल्थ मैनेजमेंट इज. टेक्निकल नेम फॉर अस इज म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स. बाय द वे, बाय लॉ आई कैन नॉट से वेल्थ मैनेजमेंट, आई कैन नॉट से इन्वेस्टमेंट एडवाइजर. लाइक मैं आपको जस्ट गाइड कर रहा हूँ, आई एम नॉट एन एडवाइजर. यस प्लीज. हाउ डिड आई प्रिपेयर माय MBA? पूरा ट्रस्ट डाल के IIMS ठाणे में जाओ, बेस्ट है. IIMS ठाणे 4 साल से मैं बता रहा हूँ सबको, और किसी सबका अच्छा ही रिव्यू रहा है. मतलब मुझे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो मुझे जानते भी नहीं होंगे, बट आई एब्सोल्युटली लव देयर मटेरियल. जितना चाहिए उतना उनके पास मटेरियल है, एंड बहुत ज़्यादा कंटेंट है उनके पास. कितना भी पढ़ाई करोगे कम पड़ेगा. IIMS ठाणे मैंने कब चालू किया था, वही मैंने बोला ना कि मैं कॉलेज से ग्रेजुएट हुआ, फिर ट्रेकर्स यूनाइटेड के साथ 2 महीना आई डिड नॉट स्टेप इनटू माय हाउस आफ्टर कॉलेज कि घूमना है. डायमेंशंस की वजह से घूमने को नहीं मिला. 2 महीना मम्मी ने मेरा चेहरा ही नहीं देखा, बिकॉज मैं यहाँ से स्पीति वैली गया, एंड स्पीति वैली में ही मैं रह रहा था. बैकपैक मतलब वो ग्रुप बदल गया, वो ग्रुप जाता था, दूसरा ग्रुप आता था, मैं वहीं था, तो वैसा था. तो 2 मंथ्स उसमें गया. फिर जैसे मैंने बोला मेरा कुछ प्लान ही नहीं था. तो ये सब होते होते अगस्त सितंबर कुछ आया था, एंड नवंबर में मुझे एग्ज़ाम देनी थी. तो मैंने 3 महीना या 2 महीना प्रिपेयर किया था कैट के लिए. सो इसलिए एक्सेलरेटर मिला. और एनी अदर स्पेसिफिक क्वेश्चन कि दैट आंसर्स? व्हाट एल्स गाइस, कम ऑन. Minimum is 500 rupees per month. And if someone from non-finance background, so who does not have any idea of market or share anything, so how can they start? With me, with people like me. So honestly बोल रहा हूँ, because अभी के लिए ना आप apps पे वगैरह करते हो, लोग मुझे पूछते हैं भाई मैं तेरे पास क्यों आऊँ, ग्रो जीरोजा के पास क्यों नहीं जाऊँ. तो मेरा आंसर रहता है अभी के लिए कर ले भाई. जब तेरे बच्चे बीवी रहेंगे ना, जब तेरे पास उतना वेल्थ रहेगा कि अब जैसे मैंने बोला एक एग्जांपल, उतने crores of rupees no one puts on grow zero. They want something, उसको बोलते हैं confirmation bias. हमारे पास CAs and CFAs भी clients हैं. क्या उनके पास knowledge कम है? नहीं. बट उनका क्या रहता है, एक बार बात तो कर लेता हूँ क्या ही जा रहा है. हमारा कमीशन रहता है 0.5%. इट इज डिडक्टेड, आपको पे नहीं करना रहता है, पीछे से कंपनी देती है. तो वो बोलता है 0.5% आई कैन अफोर्ड, बट मैं जो सोच रहा हूँ वो सही है क्या, इतना बस बताओ. इसको बोलते हैं कन्फर्मेशन बायस. एंड ये करने के लिए भी हमारे पास क्लाइंट्स हैं. सो अगर आपको नहीं पता है, गो टू समवन लाइक अस. बहुत लोग हैं, एवरी गली में एक है, तो उनके पास जाओ. एंड दैट एक्चुअली शोज अस कि अपना, आप बैठ जाओ ना क्योंकि शायद से थोड़ा बुरा लग रहा है.
टाइम सो बिकॉज शी सेज दिस, यू डोंट थिंक कि अपने कॉलेज जो इतना बड़ा कॉलेज है, यहाँ के बच्चों को ऐसा पूछना पड़ रहा है कि मुझे पता नहीं है मैं कैसे इन्वेस्ट करूँ, एंड दैट इज द फैक्ट. मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, 7-8 करोड़ लोग हैं, उनको पता नहीं क्या रहता है. दैट इज द फैक्ट ऑफ इंडिया, बिकॉज देयर इज नो फाइनेंशियल लिटरेसी. कभी आपने को बोला है कि स्टॉक मार्केट कैसे फंक्शन करता है, इसके ऊपर कोई टेक्स्ट बुक में ये था क्या बोलते चैप्टर, हाउ डज म्यूचुअल फंड्स वर्क, व्हाट इज अ हाइब्रिड म्यूचुअल फंड, व्हाट इज अ लिक्विड म्यूचुअल फंड, व्हाट इज लार्ज कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, नहीं पता भाई. ये तो बेसिक है. तो मैं थोड़ा बता देता हूँ हाउ डज स्टॉक मार्केट वर्क. कम ऑन जल्दी 5 मिनट ऐसे कम. हाउ डज स्टॉक मार्केट वर्क. यस परफेक्ट. डेफिनेटली लोगों को ये नहीं पता है, ये नहीं पता है. आई एम श्योर आप में से भी 50% को नहीं पता है, बड़े बड़े लोगों को नहीं पता है. स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है, कंपनी का प्रॉफिट होता है तो स्टॉक ऊपर जाता है. बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं. स्टॉक ऊपर सिर्फ जाता है कंपनी से, और स्टॉक से नाता सिर्फ आईपीओ तक का है. इनिशियल पब्लिक ऑफर में कंपनी इतने 1 लाख करोड़ शेयर्स दे दिए लोगों को मार्केट में. अब मार्केट में जो बंदे के पास शेयर अलॉट हुए उसने उसको पैसा दिया कंपनी को, बस कंपनी को इतना ही पैसा मिला. उसके बाद वो बंदा बोलेगा वो रेट पे वो स्टॉक बिकेगा. अगर कंपनी का प्रॉफिट अच्छा हो रहा है तो वो बंदा क्या बोलता है कि ये स्टॉक का वैल्यू तो मैं हाई ही दूंगा, वो बोलेगा मैं 120 में ही दूंगा. वो दूसरा बंदा बोल रहा है कि नहीं 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 मुझे 112 में चाहिए, ये बोलेगा नहीं 119 में 119, वो बोलेगा ठीक है डन. 119 इज द स्टॉक प्राइस. एज सिंपल एज दैट. इट इज जस्ट अ मार्केट. शेयर बाजार ऐसे प्योरली डिमांड एंड सप्लाई, नो रिलेशन विद कंपनीज एक्चुअल अंडरलाइंग परफॉर्मेंस. वो परफॉर्मेंस कैसे लिंक होता है, बिकॉज जिसके पास स्टॉक है वो कितने पे बेचेगा, वो सोचेगा ना कि यार मेरी कंपनी प्रॉफिट बना रही है तो मैं हाई प्राइस पे ही बेचूंगा. इसलिए जनरली देयर इज अ कोरिलेशन बट नॉट नेसेसरीली. दैट इज नॉट हाउ द मार्केट वर्क. ये हो गया स्टॉक मार्केट. बेसिक समझ गया, बेसिक इतना तो बता सकते हो एज अ कैरियर स्टूडेंट. अब व्हाट इज म्यूचुअल फंड, व्हाट इज म्यूचुअल फंड, कम ऑन, बहुत इजी है. बीएमएस फाइनेंस, सॉरी ओके, who does that basket, कौन बनाता है. करेक्ट. एंड फंड मैनेजर इज अपॉइंटेड बाय any word you can use. Perfect. So म्यूचुअल फंड्स मतलब क्या है, आप चारों को मिला के पैसे इन्वेस्ट करने हैं. आप बोल रहे हो जैसे मैडम ने बोला कि मुझे पता नहीं मुझे कौन से स्टॉक्स में पैसे डालने हैं. मैं बोल रहा हूँ मुझे पता है कौन से स्टॉक्स में पैसे डालने हैं, आप मुझे पैसा दो. ऐसे लाखों लोगों का पैसा वो फंड मैनेजर लेता है. फंड मैनेजर, एवरी म्यूचुअल फंड का फंड मैनेजर रहता है, वो ऐसे लाखों लोगों का पैसा लेता है. उसको बोलते हैं AUM, एसेट्स अंडर मैनेजमेंट. ओके, वो एसेट्स अंडर मैनेजमेंट लोगों का पैसे का टोटल है, उसको वो स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है एंड उसका रिटर्न्स डिस्ट्रीब्यूट करता है. इतना सिंपल है म्यूचुअल फंड. जिसको इन्वेस्ट करने को नहीं आता वो फंड मैनेजर को पैसा देगा. इसमें डाउनसाइड क्या है कि 1% आपका कट होता है. अंदाजे बता रहा हूँ, एवरी फंड का अलग अलग रहता है. दैट इज कॉल्ड द एक्सपेंस रेशियो. आप जितना पैसा दे रहे हैं उसमें से एक्सपेंस रेशियो कट होके आपका इन्वेस्ट होगा. एक्सपेंस रेशियो से क्या करता है कंपनी, फंड मैनेजर क्या करता है, खुद का सैलरी लेता है और हमारे जैसे लोगों को कमीशन बांटता है. दैट इज व्हाट एक्सपेंस रेशियो इज. अब फंड मैनेजर को अपॉइंट कौन करता है, AMC. AMC मतलब एसेट मैनेजमेंट कंपनी. तो फंड्स क्या क्या है, फॉर एग्जाम्पल SBI लार्ज कैप फंड, SBI स्मॉल कैप फंड, HDFC फ्लेक्सी कैप फंड, ये सब फंड्स हैं. AMC क्या हुई, HDFC, AMC हो गई. और क्या बोला मैंने, कोई भी, बहुत AMCs है, 44 अराउंड 54 AMCs है. दीज आर द म्यूचुअल फंड कंपनीज जो फंड मैनेजर अपॉइंट करते हैं, जो लोगों से पैसा लेते हैं, पूल ऑफ मनी बना के इक्विटी मार्केट्स में डालते हैं. दिस इज कॉल्ड इक्विटी म्यूचुअल फंड. अब दूसरा है डेट म्यूचुअल फंड. 3 हायरार्कीज. फर्स्ट इज इक्विटी डेट हाइब्रिड. दिस इज द प्राइमरी हायरार्की. इक्विटी मतलब आपका पैसा लेके स्टॉक मार्केट में डाल रहा है, इज इक्विटी. डेट मीन्स आपका पैसा लेके फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज में डाल रहा है. जैसे क्या कि गवर्नमेंट का बॉन्ड रहता है, गवर्नमेंट को भी पैसे चाहिए, गवर्नमेंट एक रिटर्न देता है, बोलता है 7% दूंगा, सब लोग मुझे पैसे दो. इसको बोलते हैं एक फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट. 7% फिक्स है, स्टॉक मार्केट में ऐसा नहीं है, 7% फिक्स है. तो जिसको बोलते हैं डेट फंड. डेट फंड में इन्वेस्ट करेंगे तो
दिस इज डेट फंड. नाउ इज अ हाइब्रिड. हाइब्रिड मतलब 60% इक्विटी में डाल रहा हूँ, 40% डेट में डाल रहा हूँ. मतलब इक्विटी में रिस्क है ना, कितना रिटर्न आ सकता है पता नहीं, शेयर मार्केट डाउन गया तो, इसलिए डेट का 40% कंपोनेंट गिव्स इट अ बैलेंस. दिस इज कॉल्ड एज अ हाइब्रिड फंड. ये 3 हायरार्की हो गई. इसके नीचे इक्विटी में देयर इज लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप. टॉप 250 कंपनीज लार्ज कैप, फिर नेक्स्ट 250 ना, हाँ नेक्स्ट 250 सबसे बड़े कंपनीज लार्ज कैप, बीच के कंपनीज मिड कैप एंड बाकी सारे स्मॉल कैप. ये लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप. देन इज फ्लेक्सी कैप. मतलब फंड मैनेजर डिसाइड करेगा कितना लार्ज कैप में डालना है, कितना मिड कैप में, कितना स्मॉल कैप में. ये फ्लेक्सी कैप. देयर इज मल्टी कैप. मल्टी कैप में फिक्स्ड है कितना, 25% लार्ज कैप में, 25% मिड कैप में, 25% स्मॉल कैप में, बाकी 25% कैश में रखते हैं फंड मैनेजर. ये हो गए टाइप्स ऑफ फंड. ठीक है. नाउ यू कैनॉट से कि मुझे पता नहीं है. यू शुड हैव मेड नोट्स. नाउ यू नो. ओके, बेसिक इतना ही है. हम लोगों को इतना ही बताते हैं, उसके जगह वो हमें पैसा देते हैं. यही बताता हूँ. व्हाट एल्स? एनी लास्ट क्वेश्चन? यस. Whenever we go on ChatGPT or Google, it is always said that MBA colleges they want work experience. Definitely. While you directly after college you gave your CAT. So what was so different about you in your CV or something that you got selected to the batch of people who were like 5 years ahead of you, probably with work experience and everything. What was it that stood out for you? एक तो मेरा कोर्स एंटरप्रेन्योरशिप था, सो थोड़ा उसमें फिल्टर कम रहता है, बट स्टिल एवरेज इज तो हाई ही था मेरे एंटरप्रेन्योरशिप बैच का भी. तो व्हाट स्टूड आउट इज आई हैड एक्सपीरियंस. कंपनी को नहीं चाहिए कि आपका कंपनी एक्सपीरियंस कितना है, आपने उसमें से क्या सीखा, इज व्हाट दे केयर फॉर. अगर आप इंटरव्यू तक पहुंच रहे हो ना, उसके बाद कंपनी को फर्क नहीं पड़ता कितने साल आप कंपनी में थे, सॉरी उसके बाद कॉलेज को फर्क नहीं पड़ता आप कितने साल कंपनी में थे. व्हाट दे वांट टू सी इज व्हाट डिड यू लर्न. वॉट एवर दे लर्न उससे कहीं ज़्यादा मैंने सीखा है बिकॉज ऑफ माई सेट ऑफ एक्सपीरियंस. तो मुझे सिर्फ इंटरव्यू तक पहुंचना था. इंटरव्यू पहुंचने के बाद वो पूछते क्या सीखा. मैंने जितना सीखा ना वो उनसे डबल था. उनके बाद 4 साल का वर्क एक्स था, बट सीखा कुछ भी नहीं. बिकॉज वॉट दे डू, एक ही रोल दे दिया है, वो रोल एवरीडे करना है, प्रमोट हो गए तो उसका बॉस बनना है, यही काम करना है. क्या सीखने को मिला? 5-10%. मैंने क्या सीखा? बहुत कुछ. वॉट मैटर्स इज एक्सपीरियंसेस. क्या सीखा वो मेरे पास ज़्यादा था, इसलिए आज बिकॉज मुझे पहले से पता था फैमिली में, क्योंकि BMS फाइनेंस कर लिया था तो मेरा फाइनेंस मुझे लगा हो गया था. एंड एज आई सेड मेरी इच्छा थी कि मैं एक कोई अलग बिजनेस करूँ एंड मैं प्रोबेबली फ्यूचर में भी करूँगा. तो अगर फाइनेंस में नहीं रहा तो फाइनेंस का एक तो मेरा डिग्री हो गया है एंड प्लस मुझे फाइनेंस से नैरो नहीं होना. आई वांट टू कीप अ लॉन्ग टर्म व्यू कि अगर मैं कल जाके कोई और बिजनेसेस में भी एक्सपांड किया तो विच माइट नॉट बी फाइनेंस, तो इतना फाइनेंस क्यों बनना है, मुझे फंड मैनेजर तो नहीं बनना है. इसलिए आई एम नॉट गोइंग टू सी. ठीक है, चलो थैंक यू सो मच. और कुछ अगर सवाल है, आई थिंक ऐसे 2-3 जन ने हाथ आधे ऊपर किए थे एंड फिर नीचे कर दिए बिकॉज आई केम हियर, बट आई थिंक टाइम इज अप. सो आई एम ऑन इंस्टा. आपका ही दोस्त लिटरली 4-5 साल का फर्क रहेगा मैथ्स अपने में. सो यू कैन रीच आउट टू मी एनी टाइम. प्लीज फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन दैट यू हैव. नंबर अगर किसी के पास है कॉल करो. ठीक है, आई एम वेरी रीचेबल. कुछ भी क्वेश्चन देंगे नहीं है. As we come to an end of this insightful session, it is my privilege to propose the vote of thanks on behalf of KUT Vijay Vazir College of Arts, Science and Commerce, the Department of Management Studies and the Alumni Association. I extend my heartfelt gratitude to our esteemed speaker and proud alumnus, Mr. Shubhankar Dekne, for taking the time to be with us and today sharing journey, experiences and valuable insights. Sir, your journey has reminded us that college is not just about academics and degrees, but also about the choices we make, the opportunities we take, and the